बेटर लीडर्स को चूज करना और ग्लोबल पैंडेमिक का क्या कनेक्शन है? वेल, कनेक्शन है, इनफैक्ट बहुत बड़ा कनेक्शन है। लेट अस एक्सप्लेन। जब पूरा दुनिया एक ग्लोबल पैंडेमिक को फेस कर रहा है, वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस आर द पीपल हु टेक द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजंस एंड ये डिसीजंस दुनिया के सभी लोगों को अफेक्ट करता है। अ लीडर इन पोजीशन ऑफ पावर नीड्स टू बी वर्दी एनफ टू टेक दीज क्रिटिकल डिसीजंस। As Spider-Man's uncle said, With great power comes great responsibility. So don't you think we need to choose the right leaders who are worthy of this great power? ये सीरीज में हम उन लेसन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कोविड ने हमें सिखाया है। अगर आप अब तक एपिसोड 1 देखे नहीं तो जल्दी जाओ और देखो। We want to make videos that inspire us and others to be better. So share this video with others if you think we added some value. Hey, this is Sriram. hey, this is Devin. When COVID-19 was first discovered back in 2019, all world leaders tried their best to contain and beat the virus. बहुत सारे countries succeed हुए, but unfortunately some couldn't. Let's take a look how few countries succeeded and few countries are still struggling. सबसे पहला country है न्यूजीलैंड. New Zealand is the country that have handled coronavirus the best. So far, a total of 2,658 cases have been reported in New Zealand. न्यूजीलैंड ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत जल्दी इंपोज कर दिए थे एंड दे क्लोज देयर बॉर्डर्स एज सून एज दे कुड। उन्होंने कर्व को फ्लैटन करने से ज़्यादा डिजीज को एलिमिनेट करने में एक एग्रेसिव अप्रोच लिया था, बट ऑफ कोर्स पब्लिक कोऑपरेशन आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन देयर विक्ट्री। दूसरा कंट्री है आइसलैंड. आइसलैंड इज अनदर कंट्री दैट हैंडल्ड कोविड-19 वेरी गुड. So far, a total of 6,550 cases have been reported in Iceland. आइसलैंड ने साइंस को उनका मेजर वेपन बनाया अगेंस्ट दिस वायरस. द थिंग इज, आइसलैंड ने ऑलरेडी एक पैंडेमिक को फेस किया है. बैक इन 1918, 2 ships carrying pandemic influenza docked in Reykjavik's downtown harbor. Within 6 weeks, 2/3 of the entire capital city's inhabitants were infected. एक सेंचुरी के बाद आइसलैंड was very well prepared for another pandemic. उन्होंने कोविड वहां आने से पहले ही उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिए थे. They decided from the beginning that they would use isolation, quarantine and contact tracing. उन्होंने बहुत intensive testing किया था to find out how this virus works and spreads through population. ये रिसर्च के थ्रू जो डेटा उन्हें मिला उससे they found out that a lot of people who tested positive were asymptomatic. तीसरा कंट्री है सिंगापुर. सिंगापुर हैज रिपोर्टेड अराउंड 62,000 केसेस सो फार. सिंगापुर ने ऑलरेडी पास्ट में सार्स वायरस को फेस किया था एंड दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर कोविड-19. उन्होंने भी न्यूजीलैंड की जैसे अपने बॉर्डर्स को बहुत जल्दी क्लोज कर दिया था. दे इंट्रोड्यूस्ड एन ऐप ट्रेस टुगेदर इन मार्च 2020. Everyone must use this app to enter stores, hospitals and even in taxis. This app helped them in contact tracing. अब हम उन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जो कोविड को हैंडल करने में इतना सक्सेसफुल नहीं रहे. सबसे पहला कंट्री है द यूनाइटेड स्टेट्स. द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिपोर्टेड अराउंड 3.8 करोड़ केसेस एंड 5.7 लाख डेथ्स सो फॉर, मेकिंग इट द वर्स्ट हिट कंट्री ड्यू टू कोविड. The GDP of US saw a decline of 5% in the first quarter of 2020. दुनिया के सबसे बड़े एंड पावरफुल देश होने के बाद भी US struggled in maintaining the spread of COVID. इसका क्या रीजन है? Well, there is a lot of factors that played a role in this. But what's the major factor that resulted in this? अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं. इंडिया हैज रिपोर्टेड 2.8 करोड़ केसेस एंड 3.3 लाख डेथ्स सो फार. It is the second worst hit country due to COVID. Indian economy is also the worst affected economy due to COVID. India was very good with its response towards first wave, but the problem arose when the second wave started. First wave और second wave के बीच में बहुत बड़ा gap था, but still we were not well prepared to handle the second wave. ये क्यों हुआ? Who played a very important role in the poor handling of COVID? आपको क्या लगता है? Why did countries like New Zealand, Iceland and Singapore succeeded and दुनिया के biggest and powerful countries like US and India are still struggling? Well, सबसे बड़ा रीजन है poor leadership. Our leaders didn't prepare our country well enough for the second wave. During the first wave, sufficient beds और ventilators की कमी थी. But हमारे लीडर्स के बैड डिसीजन मेकिंग के वजह से ड्यूरिंग द सेकेंड वेव वेंटिलेटर्स और बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी. इवन दो बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के बाद भी हमारे लीडर्स ने खुद के कंट्रीज के लिए इनफ नंबर ऑफ वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने में फेल हो गए. हमारे लीडर्स ऑनलाइन मीटिंग्स में मास्क पहने थे बट पॉलिटिकल रैलीज में नहीं पहने थे. जब सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करना था हमारे यहाँ पूरा देश पॉलिटिकल रैलीज में डूब गया था. बट इज इट राइट टू जस्ट ब्लेम आवर लीडर्स? Didn't we elect them to run our country? So isn't it also our fault? Wait a minute. हमें एक फ़ोन खरीदना हो तो हम कितने सारे वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं टू पिक द बेस्ट वन, टू गेट द बेस्ट ऑफर, टू गेट क्विकर डिलीवरी.
और हमारे घर का ग्रोसरी से ले लो, हम कितने सारे वेबसाइट्स और ऐप्स पे सर्च करते हैं टू गेट द बेस्ट ऑफर बिफोर परचेसिंग। बट एक कंट्री को रन करने के लिए किसी को इलेक्ट करना हो तो हम इसका 5% एफर्ट भी नहीं लेते हैं। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उस पे सिर्फ 67% ऑफ द एंटायर एलिजिबल पॉपुलेशन टर्न्ड आउट टू कास्ट देयर वोट्स। Yes, this number is far better than what it used to be. But it is not a true democracy unless everyone has a say on who serves the country. जितना रिसर्च हम फ़ोन लेने के लिए करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसर्च हमें वोट देने के पहले करना चाहिए। हम सही लीडर्स को वोट नहीं करते और ऊपर से हर बात के लिए उन्हीं को ब्लेम करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। We are also equally responsible. देखो, we are not trying to say out of all political parties in the country, one is good and others are bad. No, that's not what we are trying to say. आपको किसे वोट करना है, that's for you to decide. All we are trying to say is, know the person who you are voting for fully and think about why the person who you are voting for is qualified to serve the country and vote. Because remember, the person who you vote for is the person who takes the most critical decisions during a pandemic. Don't vote for anyone based on their future promises, but vote for them based on their accomplishments so far. See you in the next episode.